آج آپ کو اسلام کے ایک دلچسپ سفر کا حال سنانا ہے کہ کس طرح اسلام نافذ ہونے کے لیے ڈیرے سے نکلا اور پھر کن راہوں میں گم ہو گیا۔ ذرا غور کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 90 کی دہائی میں شہباز خیل کے ایک کچے مکان سے دوست کی کرولا گاڑی میں بیٹھ کر خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہر حکومت سے اپنا حصہ وصول کرتے کرتے بھائی بیٹے اور سمدھی کو وزارت دلانے کے ساتھ ساتھ 15 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی اپنے لیے اور دیگر کروڑوں کی لگژری گاڑیوں کے ساتھ اٹک، لکی مروت، ڈیرا، ٹیکسلا، میاں والی، لاہور میں ہزاروں ایکڑ اور یہ ٹوٹل جائیداد تقریباً اب بنتی ہے 81 ارب کی۔ اس کے علاوہ عالی شان کوٹھیاں، محلات، مارکیٹیں، مدرسے، پلازے بنا چکے ہیں جب یہ شہباز خیل سے نکلے۔ نہ کوئی کاروبار، نہ خاندانی رئیس، نہ کوئی ذریعہ آمدن، لیکن اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کر کے اپنے مفاد اور اپنی وزارت کے حصول کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ابھی بہت کچھ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں ابھی پاکستان میں پورا اسلام نافذ نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اسلام کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے کہ اتنا ٹارگٹ حاصل ہوگا تو اسلام پاکستان میں نافذ ہو جائے گا۔ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہاں عامر بھی جو ڈکٹیٹر تھے وہ بھی 2 نمبر نکلے۔ اگر کوئی اوریجنل عامر ہوتا مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرح تو پھر بھی نظام کو بہتر کر سکتا تھا، لیکن جو عامر آئے وہ بھی 2 نمبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود بنیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 23 اپریل 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جمعرات والے دن لازمی اپنے اور میرے مرحومین کو یاد کیا کریں اور کوئی دعا ان کے لیے ایزی لوڈ کر دیا کریں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، آپ کے مرحومین کی قبریں جہاں بھی ہیں ان کی طرف آپ دعا روانہ کر دیا کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو دعا ہے وہ کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک کو ساری زبانیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ ملکی حالات رکھنے ہیں، کچھ غیر ملکی حالات رکھنے ہیں۔ تازہ ترین پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک وفد وہ روانہ ہوتا ہے یا روانہ نہیں ہوتا امریکہ سے۔ یہ نچلے درجے کے جو ہے وہ سفارتکار ہیں، سفارتکار بھی نہیں ہے، یعنی کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے جس طرح جیرڈ کرشنر اور سٹیو وٹکوف، اور ایک نائب صدر ہے جس کی آئینی حیثیت ہے جے ڈی وینس۔ ان کے بارے میں کہ اب وہ فلاں دن کو آئیں گے، فلاں دن کو آئیں گے، لیکن یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو سچویشن ہے، جو کاروبار تباہ کیا گیا ہے، جو لوگوں کا روزگار تباہ کیا گیا ہے، جو ڈیلی ویجز کی مزدوری تباہ کی گئی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ یعنی اس وقت سے خاص کر جو ٹرانسپورٹ کا جو کاروبار ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ابھی حیات تھے تو برطانوی بادشاہ کا بھائی جو ہے وہ پاکستان آ رہا تھا۔ برطانوی سفیر نے قائد اعظم کو کہا کہ اگر آپ تکلیف کریں اور بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جناح نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جناح نے جواب دیا کہ بالکل میں ان کو ریسیو کروں گا، لیکن کل کو اگر میرا بھائی برطانیہ میں گیا تو کیا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا؟ اگر بادشاہ میرے بھائی کو ریسیو کرے گا
तो मैं भी बादशाह के भाई को रिसीव जो है वो कर लूंगा। ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं किरदार के पक्के लोग, जिनकी जायदादें नहीं होती, जिन्होंने कौम का माल हड़प नहीं किया होता, जिनको कौम से डर नहीं लगता, जो कौम से मुखलिस होते हैं, जो खुद 2 नंबर हैं, जिनका सियासी वजूद वो 2 नंबर है, जिनको कौम का मैंडेट हासिल नहीं है, और इन्होंने बदतरीन जो मलूकियत है वो पाकिस्तान में नाफिज कर रखी है। आप जानते हैं ना कि खिलाफत राशिदा के बाद एक खून पीने वाली मलूकियत आई थी इस पे, यानी इस्लाम पे। तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ, इस्लाम का क्या हाल हुआ और मुसलमानों का क्या हाल हुआ। इस वक्त यकीन करें कि पाकिस्तान में बदतरीन बादशाहत जो है वो नाफिज है और वो अपने अहकामात पे अमल करवाती है, और इसने मुकम्मल तौर पे जो है ना वो अमेरिका का तवाफ करके ये सारी जो जुल्म है, ये जो सारी फसायत है, ये हासिल की है। ये जरा मुलाहिजा फरमाएं कि 78 साल की कारकर्दगी क्या है। 78 साल कारकर्दगी अमेरिका का तवाफ है जो आज तक जारी है। ये हमारी टोटल कारकर्दगी है, और अमेरिका की गुलामी ने हमें सिवाय दुखों और परेशानियों के कुछ नहीं दिया है। अमरीकी खुशनुदी की खातिर अपने हजारों अफराद कत्ल कर दिए, दहशत गर्दी की जंग में झोंक दिए, जमहूरियत, अदालत, सहाफत, मेशत सब कुछ बर्बाद कर लिया। और हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सच्ची किताब में लिख रखा है कि ये यहूदी व निसारी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कि आप इनको जितना भी खुश करेंगे, आप इनको जितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे, ये खुश नहीं होंगे, बिल्कुल खुश नहीं होंगे। और वो आपसे, जिसे हम साद अल्फाज में कहते हैं डू मोर, वो आपसे डू मोर का मुतालबा करते जाएंगे, और उनके मुतालबात की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान मुआशी तौर पे तरक्की करे। हाँ, बकौल ख्वाजा आसिफ के कि उनको वेंटिलेटर लगे रहें, और वो वेंटिलेटर अमरीकी हों, ताकि उनका किसी भी मौके पर बाजू मरोड़ा जा सके, जो कि हर जो है वो मौके पे मरोड़ा जाता है। सबसे पहली खबर फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो ये लिखता है कि पाकिस्तान को जो मुज़ाकरात हैं उसका कोई खास तजर्बा नहीं है। यानी अगर ये मुज़ाकरात कतर और ओमान में होते तो हो सकता है इनका कोई नतीजा निकल आता। पाकिस्तानियों की जो उन्होंने कमजोरी बताई है, अभी जिस तरह मैंने कहा कि अमरीकी तवाफ, वो उन्होंने कमजोरी ये बताई है कि पाकिस्तान सारी बातें वो ईरान से मनवाना चाहता है। कभी ईरान को कहता है ये कर लो, कभी ईरान को कहता है ये कर लो। उनकी इतनी पसली नहीं है कि वो अमेरिका को भी कोई बात कह सकें, क्योंकि जो सहूलतकार होता है ना मुज़ाकरात के, या जो मुज़ाकरात करवा रहे होते हैं, तो वो दोनों पार्टियों का वजन बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहां पे सारा दबाव जो है वो ईरान पे डाला जाता है कि आप इस चीज से भी दस्तबरदार हो जाएं, आप इस चीज से भी दस्तबरदार हो जाएं। और ये बात ईरानी अच्छे तौर से जो है ना वो समझते हैं। ये रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने, क्योंकि आपने देखा इमरान खान और जनरल फैज हमीद के दौर में कितने तवील मुज़ाकरात हुए कतर में, अमेरिका और तालिबान के, और बेलाखिर वो मुज़ाकरात कामयाब हुए। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और वहां पे जो तालिबान रजीम थी वो कायम हो गई, अभी तक कायम है। लेकिन यहाँ पे मुज़ाकरात के नाम पे जो ड्रामा रचाया जा रहा है और जो कुछ मुज़ाकरात के नाम पे हो रहा है पाकिस्तान में, वो आप सबके जो है वो सामने है। कल एक और मुज़ायका खेज वाक़या हुआ। वो वाक़या ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसका इजलास ग्राउंड में मुनक्किद होता है।
इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो वही जानते हैं जिन्होंने इजलास मुनक्किद किया और 20-25 लाख या इससे भी ज्यादा वहां पे फूंक दिया, कालीन बिछाए गए, कुर्सियां जो है वो लगाई गई। असल में ये जो पीटीआई के लीडर्स हैं, ये कोई ना कोई जो है वो फेस सेविंग चाहते हैं, ये कोई ना कोई स्टंट जो है वो करते रहते हैं ताकि कारकुनों की जो तोपों का रुख है वो हमसे हट जाए। अब यानी कोई समझाने वाला समझाए कि ग्राउंड में इजलास करने से क्या होगा, इमरान खान की कैद पे क्या असर पड़ेगा, या जो पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। बहरहाल ये नए नए जो है ना वो आइडियाज जो है वो लाते रहते हैं। पहले स्ट्रीट मूवमेंट थी, उसके बाद जो है वो इमरान खान की तहरीक के लिए एक रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ना वो शुरू किया गया, वो कहां गया वो सारे आप लोग जानते हैं। बहरहाल ये ड्रामा रचाया गया कल ग्राउंड में। उसके बाद जो अगली खबर है, पीट हेगसेथ, आप जानते हैं कि ये जंगी मुजरिम है, ये वजीर जंग है अमेरिका का, और आज तक अमेरिका में ऐसा बदतरीन वजीर जंग या वजीर दिफा नहीं आया। अब इसने ताजा काम क्या किया है, इसने जो है वो सेक्रेटरी जो नेवल हैं उनको बरतरफ कर दिया है, और ये तकरीबन जो है वो कहा जा रहा है कि 5वां जर्नल है जिसको डिसमिस किया जा रहा है। इसमें एक अच्छा पहलू ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी है, एक वजीर वो 4 स्टार या 3 स्टार जर्नल को बरतरफ कर सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है वो ये कि अगर आप जंग जीत रहे हैं, पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप जंग जीत रहे हैं और ईरान हार रहा है तो बार बार जर्नलों को फायर करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। यानी आर्मी चीफ को फायर कर दिया जाता है और आर्मी चीफ अपने इस्तीफे में लिखता है कि जो आपका बॉस है उसे साहिब किरदार होना चाहिए, किरदार वाला होना चाहिए। यानी उसने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की भी टिंड कर दी और पीट हेगसेथ की भी टिंड कर दी। असल में प्रॉब्लम यह है कि अमरीकी अवाम समझते हैं कि उनको मार पड़ रही है, मार पड़ी है, और जो आर्मी है वो ये समझती है, जो इमरान खान का मौकिफ था, कि ये जंग हमारी है ही नहीं, ये जंग एप्स्टीन फाइल्स की है, ये जंग डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल है, और डोनाल्ड ट्रंप उन फाइल्स से या उन ईमेल से जान छुड़ाना चाहते हैं जिसमें 32,000 दफा डोनाल्ड जे ट्रंप का नाम आया है। बहरहाल ये सेक्रेटरी जो नेवल थे उनको भी बरतरफ कर दिया गया है। उसके बाद यानी एक रोज पहले जो न्यूक्लियर के सरबराह थे वो मेजर जनरल थे, उनको न सिर्फ सैक किया गया बल्कि अब खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उसकी वजह यह बनी है कि उन्होंने कुछ वीडियो शेयर की हैं या उन्होंने कुछ बात की है। लेकिन असल खुलासा यह है कि पूरी जो मिलिट्री मशीन है अमेरिका की उसमें बेचैनी है, वो इस जंग को अपना जंग जो है, अपनी जंग जो है वो नहीं समझते। मैंने कल भी शायद जिक्र किया कि जो ताजा तरीन सर्वे है, ताजा तरीन, वो 63% जो अमरीकी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सदर नहीं देखना चाहते, 63%। और ये अमेरिका की 250 साल तारीख का रिकॉर्ड है कि एक ऐसा शख्स व्हाइट हाउस में मौजूद हो जिससे 67% लोग इख्तलाफ करते हों, क्योंकि पहली बार अमेरिकियों को लग रहा है कि ये जंग ये अमेरिका के मफाद में नहीं है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, बल्कि ये सहूलतकारी है बेंजामिन नेतन्याहू की। तो बहरहाल मिलिट्री जो नेवल सेक्रेटरी थे उनको बरतरफ जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, और अमेरिका जिससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ है क्योंकि उसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि जो ईरान की सलाहियत थी, यानी जो उसकी जंगी सलाहियत थी, जो उसका मिसाइल प्रोग्राम था, जो उसका ड्रोन प्रोग्राम था, या उसके जो असासे थे, वो अभी भी 50% जो है वो महफूज है। अब अंदाजा करें कि 40 दिनों में इतना कुछ करने के बाद अगर ईरान के असासे 50% महफूज हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम 40 दिन ईरान जो है वो जंग लड़ सकता है। और अगर ईरान 40 दिन और जंग लड़ गया
तो दुनिया की क्या हालत होगी, दुनिया की क्या पोजीशन होगी। पहले आपको बता चुका हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट कर चुका है कि पूरी दुनिया में इन 40 दिनों में 4 करोड़ लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और वतन अजीज की ये सूरत हाल है। वकार मलिक रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो 50% हैं वो लोग गुर्बत की तरफ धकेले जा चुके हैं। 50% का मतलब है तकरीबन जो है वो 13 से 14 करोड़ लोग वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। और पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, पहले भी इस 4 साल जालिम रजीम ने जो कुछ किया, लोगों के कारोबार तबाह किए, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए। लेकिन अब ये जो तेल की कीमतें हैं, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें हर बंदा जो है वो मुतासिर हो रहा है। बहरहाल जो ईरान की है असासे वो महफूज हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि वो बड़े अरसे से इस जंग की तैयारी कर रहे थे और यहां तक बताया जा रहा है कि बाज जगह पे 400 मीटर और बाज जगह पे 600 मीटर जेर जमीन उन्होंने अपने असासे छुपा रखे हैं। अब इसी जो है ना वो सिनेरियो में IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि जो है ना अगर जंग खत्म हो गई, आज जंग के खात्मे पर दस्तखत हो जाते हैं, तो फिर भी कम से कम दुनिया को ट्रैक पर आने में 1 साल लगेगा। मैंने आपको शायद याद हो, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं जंग लगती है और उसमें अगर कोई बड़ा मुल्क इन्वॉल्व होता है, तो जंग के बाद जंग का नतीजा जो भी हो, दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। अब देखें ना कि दुबई पहले जैसा रहा है, सऊदीया पहले जैसा रहा है, अरब ममालिक पहले जैसे रहे हैं, तो दुनिया में फर्क पड़ चुका है। IMF कहता है कि गुर्बत के असरात रहेंगे। अब एक और खबर है कि अगर आज भी दस्तखत हो जाएं जंग बंदी पे, तो जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं ईरान ने आबनाए हुर्मुज में, उनको साफ करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। अब अंदाजा करें कि कोई जहाज फ्रीली जिस तरह पहले आते जाते थे, उस तरह वो जहाज जो है वो नहीं आ जा सकेंगे। हाँ, एक सूरत है कि ईरानी उन्हें गाइड करें, ईरानी बताएं कि कौन सा रास्ता साफ है और कौन सा रास्ता खतरनाक है। तो ये 6 महीने का प्रोसेस है कि जी तमाम जो बारूदी सुरंगें हैं वहां से साफ कर ली जाएं, यानी दुनिया वापस उस मकाम पर बड़ी मुश्किल से आएगी जिस मकाम पर इस जंग छिड़ने से पहले थी। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया में आग लगाई, अब उस पे मजीद 6 महीने जो है वो लग सकते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तजिए निगारों के मुताबिक एक मुलाकात की गूंज है। अदील सरफराज बहुत सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि अली अमीन गंडापुर को स्पेशल मिशन पे जो है वो अडयाला जेल भेजा गया और उनकी 2 घंटे जो है वो मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, और अली अमीन गंडापुर ने उनको बाहर के तमाम हालात बताए हैं। मुबैना तौर पे पहली दफा, यानी इस सारे अरसे में पहली दफा इमरान खान ने कहा है कि मैं सोचूंगा। ये दावा जो है वो तजिया निगार कर रहे हैं। अब पत्नी किस बात पे इमरान खान सोचेंगे, ये बात सामने नहीं आई। वो मुल्क छोड़ देंगे, वो मुआहदा कर लेंगे चुप रहने का, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या डील करेंगे, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं, तो उसके बाद पहली दफा उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि मैं सोचूंगा। लेकिन इस मुलाकात की जो है वो तरदीदें भी आ रही हैं, इस मुलाकात की तस्दीकें भी आ रही हैं। और आपको पता है कि ऐसी मुलाकातें रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो रिपोर्ट होता है, जो वो नहीं चाहती वो जो है ना रिपोर्ट नहीं होता। एक और बैन अल-अक़वामी खबर है और बड़ी अजीब खबर है। वो खबर ये है कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जो अड्डा है अमेरिका का सऊदीया में, वहां पे अमेरिका ने यूक्रेन से मंगवाकर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगा दिया है और अपनी जान छुड़ा ली है। अब बहरहाल देखना है, खुदा ना खास्ता कि अगर वो
یہ جنگ شروع ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو دیکھتے ہیں کہ پرنس سلطان کا کتنا جو ہے نا ایئر بیس کا ڈیفنس ہوتا ہے، اور وہ جو مسخرہ پھر رہا ہے پوری دنیا میں، اپنے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے زیلنسکی، تو اس کا جو سسٹم ہے وہ کتنا کام کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ نئی خبر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ سامع خان، یہ ٹی وی پہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے مقدر کا، ملکوں کے مقدر کا بتاتے ہیں۔ موصوفہ نے نیا بیانیہ چھوڑا ہے جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پہلا بیانیہ ہے، اور میرا خیال ہے یہ دنیا کی پہلی ملٹری ہوگی، پہلے جرنیل ہوں گے جو ایک طلاق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کل کے ویلاگ میں جو کہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے حسب معمول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اچھی چیز ہے وہ میری قوم جو ہے نا پسند نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کی میں نے کل سٹوری رکھی تھی آپ کے سامنے، تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو لفٹ نہیں کرائی کہ صلاح الدین ایوبی کس باغ کی مولی ہے۔ بہرحال یہ پہلے جرنیل ہیں جو طلاق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا میں نے بتایا کہ وہ بچپن سے مدرسے میں سنتے تھے فلسطین کے بارے میں، تو ان کے دل میں گھر کر گئی بات کہ فلسطین کو آزاد کرانا، اور پھر انہوں نے آزاد کروایا۔ ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ جو ہے نا طلاق کروانی ہے، بشرا بی بی اور عمران خان کی طلاق کروانی ہے، ملک ترقی کر جائے گا، ملک کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو ان کی ایک ٹوٹ ہے سامع خان۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ موصوفہ کو خود طلاق ہو چکی ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، اپنی طلاقوں کو نہیں پتا۔ انہوں نے تازہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو شادی ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ بیانیہ ہے پاکستان کی ملٹری کا کہ یہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے، اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ویسے بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اور 59 منٹ وہ غصے میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا شو کرانے کے لیے ان کے منہ سے جھاگ نکلتی رہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ان کا غصہ نہیں اتر رہا۔ جب انہیں ایز ڈی جی ISI ہٹایا گیا تھا اور انہوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی کوشش کی تھی اور وہ ملاقات نہ ہو سکی، تو پھر اس کے بعد عدت آ گیا، اس کے بعد شادی آ گئی، اس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق آ گئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے یعنی دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، دنیا کن خطوط پہ سوچ رہی ہے، اور یہاں کی آپ وہ 1958 کی یا 1960 کی وہ ایک لانتی فیلڈ مارشل وہ ان کو بک دے گیا تھا کہ کس طرح آپ نے خواتین کی جو ہے نا وہ مذاق اڑانا ہے، کس طرح ان کی کردار کشی کرنی ہے، وہی بک ان کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے خود رج کے فیلڈ مارشل اور بھٹو نے فاطمہ جناح کی کردار کشی کی تھی، تو اب جو ہے وہ بشرا بی بی نشانے پر ہیں۔ ایک اور خبر پاکستان میں بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ ہے ایڈز۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی موذی اور مہلک بیماری ہے۔ پہلے تونسا میں اس کا جو ہے نا وہ انکشاف ہوا کہ 321 بچے وہ اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد لوگ صرف اسلام آباد میں جو ہے وہ اس کا شکار ہیں، اور منتھلی 41 جو نوجوان ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ یا تو ہسپتال اس کی وجہ بن رہے ہیں، یا وہ سرنجیں ہیں، یا ہسپتال خود چونکہ کیری کرتے ہیں ایسے جرمز کو، تو یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب ایک نئی بات سامنے آئی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ ایک صحافی نے بھی کیا ہے کہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے صدر ہیں آصف علی زرداری وہ بھی ایک مہلک بیماری کا شکار ہیں، اور بہت جلد وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ چھٹی لیں گے اور وہ جو ہے نا وہ چلے جائیں گے۔ ہونا بھی چاہیے، یعنی اگر نہیں ہے یہ بیماری، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ یہ میری دلی دعا ہے کہ حاکم علی زرداری کے بیٹے کو یہ بیماری ہونی چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، جو انہوں نے پاکستان کے وسائل کے ساتھ کیا، اگر زرداری کو ایڈز نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔
फौरन से पहले होनी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत जो इस दुनिया में है उसको इस दुनिया में भी थोड़ा बहुत बदला मिले। आजकल वैसे भी आप उसकी शक्ल देखें तो आपको कराहत आएगी। बहरहाल ये खबरें जो है वो जेर गर्दिश हैं। एक यूट्यूबर ने तो अपने थंबनेल की सुर्खी लगाई है कि जरदारी एड्स का शिकार, आगे सवालिया निशान डाला है। तो ये अगर वो नहीं है तो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ को होना चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में एक दफा सुना था कि उसे गले का कैंसर है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। शहबाज शरीफ को कमर का कैंसर है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। सबको होना चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। और अल्लाह पाक अपना दिखाएं, अपना आप दिखाएं, लोगों के सीनों में ठंड पड़े कि हाँ जी इनको ये सारी बीमारियां जो है वो हो गई हैं। बहरहाल सवाल उठ रहा है नया सदर, तो मैं आपको कब से बता रहा हूं कि नया सदर वन एंड ओनली जो पाकिस्तान के मुकद्दर में है वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। 28वीं तरमीम की जो है वो तैयारी हो रही है, तो उसके बाद वो बावर्दी सदर होंगे। पाकिस्तान के नए जो है वो होंगे मुसल्लफात के, वैसे भी वो सरबराह हैं, तो फिर वो जब वो सदर बन गए। लेकिन ये बात सच होनी चाहिए कि जो है ना वो जरदारी को एड्स है और पाकिस्तानी कुछ देर के लिए जो है वो अपना गम शायद गलत कर लें, भूल जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का निचोड़ ये है कि हाकिम अली जरदारी का बेटा जो कैद आजम को पागल का पुत्र कहता था, उसका बेटा दूसरी दफा पाकिस्तान का सदर है। ये हैं जर्नैलों की तरजीहात और ये है जर्नैलों की पाकिस्तान से मोहब्बत। बहरहाल अगले सदर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर इन मुज़ाकरात को सिविलियन हैंडल करें और जर्नैल इसमें से निकल जाएं, क्योंकि जर्नैल तो जी सिट डाउन, टेंडिटी, टेंशन, स्टैंड अप, खलीवली, उनको मुज़ाकरात का क्या पता। यानी सिंपल सी बात है कि उनको मुज़ाकरात का क्या पता। यहां पे अगर कोई सिविलियन होता, मैं कहता हूं नवाज शरीफ ही होता, मैं कहता हूं शहबाज शरीफ ही होता, और अगर इमरान खान होते तो इमरान खान तो बाएं हाथ का खेल था। मैंने अभी आपको बताया कि कतर में जो मुज़ाकरात हुए तालिबान के और अमेरिका के, वो हुए तो कतर में, लेकिन वो सारा कंडक्ट पाकिस्तान ने करवाए। उसमें जो इनपुट था वो फैज हमीद का था, इमरान खान का था। इमरान खान ओरिजिनल बॉस थे उस वक्त और वो सारे मामलात को देख रहे थे। और यहां पे असल में इनके जाती इंटरेस्ट है। ये मुज़ाकरात भी क्यों हैं कि इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिले, इंटरनेशनल जरीदे हमारा जिक्र करें, अखबारात में हमारी तस्वीरें आए, अखबारात में हमारे नाम आए। नीयत ही गलत है। हमारे इस गैर कानूनी इक्तदार को दवाम मिले, हमारा ये गैर कानूनी इक्तदार वो दुनिया के नजर में कानूनी हो जाए। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि वजीर आजम है इटली की, किस तरह वो बैन अल-अक़वामी मीडिया पे छाई हुई है, लेकिन वो ओरिजिनल वजीर आजम है, वो लोगों की नुमाइंदा है, वो आसिम मुनीर तो है नहीं। इन मुज़ाकरात में ये अपनी लेवरेज ढूंढते हैं, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, क्या जरूरत है। लेकिन अपना आप दिखाना है और अपनी जो है ना वो कानूनी हैसियत को लोगों के सामने स्टैब्लिश करना है और टूट छोड़ना है। बल्ले बल्ले बल्ले, कोई कहता है खालिद बिन वलीद से आगे निकल गया है, कोई कहता है सलाउद्दीन अय्यूबी से आगे निकल गया है, कोई कहता है तारिक बिन जाद से। किया क्या है, किया क्या है। और जरा निकल के देखें, निकल जाए मुज़ाकरात से। कि आपका क्या ताल्लुक है मुज़ाकरात से, आप अपना काम करें, आप देखें मसला हल हो जाएगा। ये जाके ईरान को डराते हैं, अमेरिका की ये बात मान लें, अमेरिका को वेंटिलेटर समझ लें जिस तरह हमने समझा हुआ है। तो ये निकल के देखें। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा कहता है उसकी जो टॉर्चर कमेटी है कि इमरान खान पे टॉर्चर हो रहा है। 23 घंटे जो है वो इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है। इमरान खान से वकला की मुलाकात नहीं होती, इमरान खान से उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं होती। इमरान खान पर जो अदालत के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अगर बंद नहीं भी किए गए तो उसमें सरफराज डोगर बैठा है, उसमें हाजी अमीन बैठा है,
उसमें मियां आमिर फारूक बैठा है, उसमें याया आफरीदी बैठा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। उन्होंने जवाब तलब किया इनसे। अब जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को कौन चलाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को फंड कौन करता है, अक़वाम मुत्तहिदा किसकी लौंडी है। लेकिन जाहिर है उन्होंने एक अपना इमेज जो है, फिर शख्सियात जो है वो भी बाकिरदार होती हैं, अच्छी होती हैं, यानी जो उन इदारों में शख्सियात हैं। जिस तरह इस कमेटी में एक पीटर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है। उन्होंने जो है वो इमरान खान के मामले पे आवाज उठाई है कि इमरान खान पे जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है वो किया जा रहा है, नफ्सियाती तशद्दुद किया जा रहा है। यानी उसके असरात देखे ना कि अचानक खबर आती है कि इमरान खान की आंख खराब हो गई है, अचानक खबर आती है कि वो क्लॉट बन गया है। क्यों क्लॉट बन गया है? इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले शख्स की आंख, अगर वो क्लॉट किसी और जगह पे बनता, फिर खबर आती है कि बुशरा बीबी की आंख खराब हो गई है, फिर खबर आती है कि सनम जावेद की आंख खराब हो गई है, फिर खबर आती है फलक जावेद की आंख खराब हो गई है, फिर खबर आती है एजाज चौधरी के 80% जो गुर्दे हैं वो काम करना छोड़ गए हैं, फिर खबर आती है कि उमर सरफराज चीमा, उसका बाजू जो है वो शल हो गया है, सुन हो गया है। ये सजाएं याया को मिली। ये सजाएं जिन जर्नैलों का नाम लिया गया हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में, उनकी कब्रों पे जाके जंजीरें डाल दें, जंजीरें, उनको जंजीरों में जकड़ें, उनकी कब्रों को। जनरल मिठा, जनरल न्याजी, जनरल याया, जनरल गुलाम उमर, जनरल गुल हसन, जनरल रऊफ रमान अली, जनरल मादरत जनरल अब्दुल हमीद, इनके नाम है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में। इनकी कब्रों पर जंजीरें लगाए, जंजीरें। जिस तरह वो कहते हैं कि यजीद की कब्र पे जब जनरल असद सदर थे ना, बशार उल असद के बाद, तो उन्होंने चूने की भट्ठी लगवा दी थी उसकी कब्र पे, चूने की भट्ठी, सदर असद ने। इनकी कब्रों को जंजीरों से जकड़े। मादरत जिया की कब्र को, मुशर्रफ की कब्र को, याया की कब्र को, अयूब की कब्र को जंजीरों से जकड़े और उनकी कब्रों को सजाएं दे। अब मेरी आवाज है साथ नहीं दे रही। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।